Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about class 8th chapter 3rd understanding quadrilateral exercise 3.2. So let's move to the first question. So the first question is find the value of x in the following figures. तो हमने क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 360 डिग्री. So I will write sum of all exterior angles of polygon is 360 डिग्री. क्लियर. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो दोनों ही ए और बी दोनों पार्ट्स पे अप्लाई होगी. तो यहाँ पे देखो बट वो एक्सटीरियर एंगल की बात है. ये जो x है दिस इज एक्सटीरियर and this 125 is also exterior and this 125 is also exterior. That means इन तीनों एंगल्स का जो सम है that will be 360 degree. So we write this x plus 125 plus 125 equal to 360 degree. Now x plus 250 degree equal to 360 degree. Therefore x is equals to 360 divided by minus 250. That means x is equals to 110 degree. So this is our first solution of A part. Clear. Now move to the B part. In the second part we have to find, we will use the same property. Now 60 is exterior angle, 90 is exterior angle, this 70 is exterior, this x is exterior, but this 90 is interior angle. So let's consider this at angle 1. Clear. Now angle 1 plus 90 degree equals to 180 degree. Angle 1 equals to 180 minus 90 degree. Angle 1 equals to 90 degree. तो दैट मीन्स ये जो एंगल 1 है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. अब हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. अब हमारे पास सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री. नाउ दिस एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x is equals to 360 degree. ठीक है. एंगल 1 is 90 degree. 90 degree plus 60 degree plus 90 degree plus 70 degree plus x is equals to 360 degree. 90 plus 60 plus 90 plus 70 equals to 310 plus x is equals to 360. That means x is equals to 360 minus 310. That means x is equals to 50 degree. So this is the solution of part B. Clear. Now move to the next question. Our next question is question number 2. Find the measure of each of the exterior angle of a regular polygon of 9 sides. तो देखो हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है और हमें क्या गिवन है, साइड्स. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n. n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर. सो इन द फर्स्ट पार्ट n इक्वल्स टू 9. Therefore exterior angle equal to 360 divided by 9. 9 cancel with 360 at 40 degree. That means exterior angle is equal to 40 degree. तो इसके लिए exterior angle कितना आ गया, 40 degree. Clear. Now with the same formula we have to apply on the second part. Second part is number of sides are 15. That means n equal to 15. Therefore exterior angle
एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 15। 360 को जब हम 15 से कैंसिल करेंगे वी गेट 24 डिग्री, implies that exterior angle equal to 24 डिग्री। क्लियर? और आपने एक लाइन जरूर लिखनी है, that is sum of all exterior angles of polygon equal to 360 डिग्री। ये आपने दोनों पार्ट्स में लिखनी है। क्लियर? Now move to the next question. Next question is question number 3rd. How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? अब आपको देखो जो रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, 24 डिग्री। दैट मींस 360 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 24 कैंसिल विद 360 एट 15, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। और नंबर ऑफ साइड्स पे आपने डिग्री नहीं लगाना क्योंकि जो साइड्स है वो आपकी नेचुरल नंबर में होती है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is how many sides does a regular polygon if the interior angle is 165? अब यहाँ पे बात की है हमें इंटीरियर एंगल की। अब देखो कोई भी अगर एक फिगर है, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, सो ये देखो ये आपका इंटीरियर एंगल है और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। हमेशा आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, दैट मींस 180 डिग्री बनाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले आपने इंटीरियर एंगल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, एक्सटीरियर एंगल को हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस 165 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्लियर? एंड वी नो दैट sum of all exterior angle of a polygon is 360 degree। क्लियर? और हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? और एक्सटीरियर एंगल इसीलिए हमें फाइंड आउट किया क्योंकि फॉर्मूले में हमने यूज क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। नाउ 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री, दैट मींस व्हेन यू डिवाइड 15 बाय 360 वी गेट 24, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 24। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Now move to the next question. Next question is question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree? अब यहाँ पे ये पूछा है किसी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री हो सकता है। अब देखो रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए पहले हमें उनकी साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 360 डिवाइड बाय 22 इज योर एक्सटीरियर एंगल, व्हेन यू डिवाइड वी गेट 11 देयर इज 180 डिग्री। अब 11 जो है 180 पे डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये कोई नेचुरल नंबर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स है वो आपके पास नेचुरल नंबर होती है, कोई नेगेटिव में नहीं होती, कोई फ्रैक्शन में होती, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स को अगर हमने निकालना है तो आपके पास होगा जैसे 24 साइड्स, 25 साइड, 26 साइड। we not write like 2.5 side. This 2.5 may be the length of the sides, but in the counting we just write the natural number. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the result of above
division is not natural number but number of sides are always natural number, so 22 degree is not possible as exterior angle. ठीक है, 22 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल नहीं बन सकता। क्लियर। अब जो बी पार्ट है वो हमें क्या बोला गया है, बी पार्ट के लिए कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल, क्या वो इंटीरियर एंगल बन सकता है कौन, 22 डिग्री। ठीक है, अगर आपका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो हमें पहले क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 में से हम माइनस करेंगे, वी गेट 158। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल के, तो 360 डिवाइड बाय 158। अब ये फिर डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट मीन्स 158 जो है वो 360 से डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स नेचुरल नंबर साइड्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स 22 डिग्री कांट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, नो। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So the question number 6 is, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? तो रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या जरूरी है। तो देखो रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहली बात, जितना छोटा आपका पॉलीगन होगा उतना ही आपका एंगल स्मॉलर होगा इंटीरियर। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा पॉलीगन है दैट इज द ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कौन सी चाहिए, रेगुलर। रेगुलर मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सारे एंगल होते हैं दैट इज 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। सो द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर। तो y का आंसर क्या है, इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर मिनिमम देन द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल। सो मिनिमम regular polygon is equilateral triangle and the minimum interior angle is 60 degree. Clear. Next part number B, what is the maximum exterior angle? अब देखो हमारे पास क्या है, exterior angle plus interior angle is equals to 180 degree। अब देखो अगर इंटीरियर मिनिमम होगा तो 180 में से अगर हम मिनिमम नंबर को माइनस करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्लियर। अब हमारा मिनिमम जो है, मिनिमम इंटीरियर एंगल वो कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 120 डिग्री। क्लियर। क्योंकि देखो अगर मैं इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा या इंक्रीज करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल को कम होने पड़ेगा, तभी उसका जो सम है वो 180 रहेगा। क्लियर। लाइक आई गिवन अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज दीज आर द टू एंगल्स, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। क्लियर। अब ये दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर मैं एंगल 1 को इंक्रीज करूं, मतलब इस लाइन को लेफ्ट की तरफ मैं बेंड करूं, तो एंगल 1 इंक्रीज हो जाएगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इफ इंटीरियर एंगल को मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरे को एक्सटीरियर एंगल कम मिलेगा, इसीलिए मुझे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तब मिलेगा जब मेरा मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। और मिनिमम इंटीरियर एंगल किसमें, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, दैट इज 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, 180 में से माइनस करके। सो मेरा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। क्लियर। With this question we have completed exercise 3.2. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.